हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद 102, 103 और 104। तो शुरू करें। ठीक है दोस्तों, शुरू करती हूँ। ओके दोस्तों, तो मैं शुरू करती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 102। 102 में क्या बताया गया है? डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। संविधान के आर्टिकल 102 डिस्क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप। नंबर 1, अ पर्सन। नंबर 1, अ पर्सन shall be qualified for being chosen as and for being a member of either house of the parliament. A, if he holds any office of profit under the government of India or the government of any state other than an office declared by the parliament by law not to disqualify its holder. B, if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court. Number C, if he is an undischarged insolvent. Number D, if he is not a citizen of India or has voluntarily acquired the citizenship of a foreign state or is under any acknowledge of allegiance or adherence to a foreign state. E. Number E, if he is so disqualified by or under any law made by Parliament. Explanation. For the purposes of this clause A, for the purposes of this clause, a person shall not be deemed to hold an office of profit under the government of India or the government of any state by reason only that he is a minister either for the union or for such state. Number 2, a person shall be disqualified for being a member of either house of parliament if he is so disqualified under the 10th schedule 103 article. Decision on the questions as to disqualifications of members. Number 1, if any question arises as to whether a member of either house of parliament has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause 1st of article 102, the question shall be referred for the decision of the president and his decision shall be final. 103 का number 2, before giving any decision on any such question, the president shall obtain the opinion of the election commission and shall act according to such opinion. 104 article, penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified. क्या कह रहा है कि 104 आर्टिकल, penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 99 or when not qualified or when disqualified. If a person sits or votes as a member of either house of the parliament before he has complied with the requirements of article 99 or when he knows that he is not qualified or that he is disqualified for a membership
thereof, or that he is prohibited from so doing by the provisions of any law made by Parliament, he shall be liable in respect of each day on which he so sits or votes to a penalty of 500 rupees to be discovered as a debt due to the union। तो अब मैं इसका हिंदी में पढ़ लेती हूँ क्या कहा गया है। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निहरताएं। यदि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सॉरी गला खराब हो रहा है मेरा। अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निहरताएं। नंबर 1, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निहरित होगा। नंबर का, यदि वे भारत के या किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाले का निहरित न होना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई लाभ का पद धारण करता है। तो नंबर का, यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा विद्यमान है। यदि सक्षम जो न्यायालय है उसने ऐसे घोषणा विद्यमान की है, डिक्लेयर किया है, तो विकृत चित्त इंसॉल्वेंटी। गा, यदि वे अनुमोचित दिवालिया है। घा, यदि वे भारत का नागरिक नहीं है या उसने किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है या वे किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुशक्ति को अस्वीकार किए हुए है। नंबर 1, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहरित यदि वे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निहरित कर दिया जाता है। स्पष्टीकरण, इस खंड के प्रयोजनों के लिए कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। नंबर 2, कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य होने के लिए निहरित होगा यदि वह 10वीं अनुसूची के अधीन इस प्रकार निहरित हो जाता है। अनुच्छेद 103 सदस्यों की निहरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। नंबर 1, यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड 1 में वर्णित किसी निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वे प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। नंबर 2, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने के पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार कार्य करेगा। अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या आहरित न होते हुए या निर्हरित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति। यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए आहरित नहीं हूँ या निर्हित कर दिया गया हूँ या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध कर दिया गया हूँ, सदस्य के रूप में बैठता है या मत देता है, तो वह प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है या मत देता है 500 रुपये की शास्ति का भागी होगा, जो संसद को देय ऋण के रूप में वसूल की जाएगी। तो ये तो था अनुच्छेद 102, 103 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102, 103 और 104। तो अब मैं वो पढ़ लेती हूँ थोड़ा। अभी नहीं पढ़ूंगी, बाद में। कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट।
इसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों, संध्या मैम नाम का चैनल आपका अपना चैनल है, उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ। कल मिलूँगी नए आर्टिकल के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।